राजधानी दिल्ली में डॉग प्रेमियों के लिए एक शानदार अवसर आने वाला है। ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो का आयोजन 9, 10, 11 फरवरी को मानेकशॉ ऑडिटोरियम सेंटर कैंटोनमेंट एरिया नई दिल्ली में किया गया। इस इवेंट का आयोजन PLRC और IKL द्वारा किया गया। ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चला, जिसमें GSD जर्मन शेफर्ड स्पेशलिटी शो 10 फरवरी को हुआ और ओबीडियंस डॉग शो 11 फरवरी को हुआ। फैशन शो प्रतिदिन आयोजित किया गया। पालतू जानवरों के लिए कई मजेदार गेम्स और प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। इस कार्यक्रम में डॉग लवर्स ने न केवल अलग अलग ब्रीड्स के शानदार कुत्तों को देखने का मौका मिला, बल्कि वे अपने पालतू कुत्तों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने का मौका मिला। इसके अलावा PLRC संस्था द्वारा एक फ्री कैंप एडॉप्शन का भी आयोजन किया गया, जहां पे लोग बेघर पिल्लों को गोद ले सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद है। मैं PLRC से आई थिंक जब से ये स्टार्ट हुआ था मैं तब से ही जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम रूटीन अटेंडी ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग्स अरेंज्ड बाय PLRC. I know all of the team involved in PLRC and we are basically always waiting for new event when they are going to plan any hands-on workshop for dogs, cats, and I am regular attendee. I hardly leave any training which is available hands-on. So how these events are beneficial for the pet lovers, for the pet parents? As what a kind of knowledge they gain? Yes, as a veterinarian, see, you can't learn each and every technique in the college. You basically learn with time and you take different trainings. Earlier, what was the trend? Like 10 years before, there were no good speakers and hands-on training were available in India. So doctors tend to go outside, which was very costly. Now organizations like PLRC are bringing foreign surgeons, foreign speakers to India and arranging such a beautiful programs and training sessions, which was very rare earlier. Now it is very feasible and accessible. We are getting lots of knowledge, and definitely if doctor is training themselves, every year we are attending 5-6 new trainings on new research work done. Definitely we will be able to practice well and we will be able to save more lives. So you're doing a great task because of people like you, the army people. They're training the stray dogs and they're using them for the task. So yes, regarding I have seen on Insta also. So see, stray dogs have natural immunity and they are have more natural instinct and they are more suited to our environment, Indian environment. So definitely wherever they go, they can excel in those departments. Dr. Vipin Sharma, I am a small animal practitioner from South Delhi. आप कब से जुड़े हुए हैं PLRC के साथ और आपका अनुभव कैसा रहा? हम शुरू से since inception I am here. I am one of the board members. Because of social media, there are so many things available on the social media. So wherever good knowledge is coming, so keep on grabbing all this and never think you are the expert. So keep on learning till you die. So this is the message, and do some expertise in some area, like eye surgery or orthopedic or ultrasound or dentistry. So some specialty should be there. देखिए, Fujifilm is a Japanese multinational company और हम लोग मार्केट में now more than decades now in the market now. And if I talk about the especially for a veterinary segment, so we are now more than 7 years in the industry. And हमारा जो basically काम है, we have an pet, जितने भी रहते हैं हमारे animals, small और large animals, उनके लिए घनी टेस्टिंग होती है, which is called as an ब्लड टेस्टिंग आप उसको बोलते हैं। इसमें कुछ आप मान लो किसी एनिमल को कुछ इन्फेक्शन है, कुछ फीवर है, उस केस में एक वेटनेरियन टेस्ट रिकमेंड करता है टू द पेट पेरेंट, और पेट पेरेंट जो है फिर टेस्टिंग कराने के लिए हमारी मशीन पे कराता है, विच विल डू कंप्लीट द लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एवरीथिंग विल बी डन ऑन आवर मशीन विच इज फ्यूजिफिल्म ट्राई केमिस्ट्री, इज अ बायोकेमिस्ट्री मशीन एक्चुअली। आपको पता होगा कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता और काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं और ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड से हम काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग भी इनकी मेडिसिन को पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन लोगों को आज तक ये पता ही नहीं है कि जो पेट है उनकी जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक भी आती है। तो ये बहुत अच्छा आपके पास ये मेडिसिन है, ये कितने समय से है और क्या ऐसा एक मान्यता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो थोड़ा स्लो काम करती है? नहीं मैम, एक्चुअल में जो आप बात करें, पहले जो प्रोफेशन था कि एक तरीके से था कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बड़ा स्लो काम करती है, बट अब ऐसा नहीं है।
जैसे एलोपैथिक मेडिसिन काम करती हैं उस तरीके से ये भी काम करती हैं, बट इनका एक बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप इजी ले सकते हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी, तो काफ़ी बेस्ट हैं ये। और जैसे बहुत सारे ऐसे जो पेट पेरेंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो दवाइयाँ जो इसको देते हैं, तो जैसे कार्ड होता है ना बच्चे का, वो बनता है प्रॉपर कैल्शियम वगैरह जो दवाइयाँ होती हैं, बिल्कुल। तो क्या आपके पास भी सारी दवाइयाँ होती हैं? तो ऑलमोस्ट टोटली हैं, जितनी भी डिजीज़ रहती हैं पेट्स के अंदर, इवन एनिमल्स के अंदर, सब हमारे पास अवेलेबल हैं। PLRC में मैक्सिमम एजुकेशन होता है वेट्स का, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो फॉरेन वेट्स आते हैं वो आके बोलते हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस वेट्स हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी जो कि हम जैसे डॉक्टर मालूम है, ये लोग काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो दैट वी गेट एजुकेटेड अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन वेटनरी एंड हम पेट्स का अच्छे से अच्छा इलाज कर सकें, और बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है इससे वेट्स को, बहुत स्पेशली यंग वेट्स को काफ़ी। सर आप कब से जुड़े हुए हैं PLRC के साथ? मैं तकरीबन 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ PLRC से। और आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत सारा, कई सारे सब्जेक्ट्स को ये कवर करते हैं, यंग वेट्स को सपोर्ट करते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं और बहुत एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव रखते हैं।